morning students. Let's start our next chapter, that is chapter number 8, transport and communication. Students, this is very important chapter from the exam point of view. Uh, First of all, transport and communication. We already discussed about the general transport and communication. What is transport and what is communication? So we will not go through in detail. But first is transport. Carrying of goods and passengers from one place to another is called transport. We already discussed this definition in our previous lecture. गुड्स और पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जो हम मीन्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट. सेकेंड इज कम्युनिकेशन. व्हाट इज कम्युनिकेशन? कन्वेइंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और आइडिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. जब हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी आइडिया या अपनी नॉलेज कन्वे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. Now the question arises, what is the importance of transport and communication? Transport and communication की importance क्या है? First of all, it plays a vital role in economic growth. किसी भी country की economic growth में transport and communication that plays very important role because any country for its economic growth it depends upon the transport and communication, because transport helps to transport the goods from one place to another, whether it is market or consumer side, and communication to expand the trade we need communication system. So both of these are vital for the economic growth of any country. Second is it provides link between the production area and market. Production area and market, suppose it is the production area or you can say industries, and this is the market or you can say the consumer, where the consumers are there. So if we have to transport the goods from the industries to the market, we need a transportation system. इसी तरीके से अगर ये प्लेस जो है रॉ मटेरियल प्लेस है और वी हैव टू ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज, वी आल्सो नीड द ट्रांसपोर्टेशन. सो इट प्रोवाइड्स लिंक बिटवीन द प्रोडक्शन सेंटर एंड द मार्केट और फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज. थर्ड इज it provides a network of routes, channels and carriers through which trade take place. अब कोई भी कंट्री जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू डिफरेंट नेटवर्क चैनल बनाती है. इसको हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. व्हाट इज नेटवर्क, नोड्स, वर्टेक्स, लिंक और एज. डिफरेंट रूट्स जो हैं वो एक जगह पर आकर मिलते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस जो हैं दे आर कनेक्टेड विद वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ रूट्स. और इसी तरीके से डिफरेंट चैनल्स और जो करियर्स हैं वो मिलते हैं, जिससे कि ट्रेड जो है वो पॉसिबल हो पाता है. फोर्थ इज इट लिंक्स डिफरेंट कंट्रीज विद वन अनदर एंड कन्वर्ट आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, बिफोर द ट्रांसपोर्टेशन वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वी आर कन्फाइंड टू आवर एरिया और आवर टाउन और आवर कंट्री, बट by the passage of time the transportation developed and we started trade with different countries. So it connect all the countries of the world and our world is converted into a single unit or a single global village. अब मैसेज भी ऐसे ही कम्युनिकेशन ने भी वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर दिया है. पहले कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा डेवलप नहीं था, लेटर एनवेलप इनके जरिए हम कम्युनिकेट करते थे. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम. तो इससे क्या होता था, कम्युनिकेशन डिफरेंसेस रहता था. लेकिन अब क्या है कि ईमेल है, इंटरनेट है, आपका टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, जिससे आप ऐसा लगता है जैसे फेस टू फेस बात कर रहे हैं. तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम भी इतना डेवलप हो गया है कि हम वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर में बैठे इंसान से बात कर सकते हैं. सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कन्वर्ट द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. So
students, we have different modes of transport in our modern transportation system. Broadly, we can classify it into four categories. First is land, second is water, third is air, and the most recent mode of transport is pipelines. Now it is also considered as the mode of transport. Land is further divided into two categories, roads and railways. Roads and railways are the subtypes of land transport. Water is also further divided into two categories, ocean and inland. Similarly, air transport is also categorized into two types, domestic and international. We will discuss all these categories thoroughly in this chapter. First of all, before we discuss all these modes of transportation, we must know the choice of transportation, because we have different choice of transportation like roads, railways, oceans, air transport or pipelines. So it depends upon different factors, or we can say our need. हमारी नीड क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से ट्रांसपोर्टेशन को चूज करेंगे. सबसे पहले इसमें तीन चीजें जो है मेन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट है टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर टू बी ट्रांसपोर्टेड. जिन गुड्स और सर्विसेज को हमने ट्रांसपोर्ट करना है वो किस तरीके की है. अब इसमें दो तरीके की गुड्स हमारे पास आती हैं. फर्स्ट आती है ड्यूरेबल और दूसरी आती है पेरिशेबल. Two types of goods we have, durable and perishable. Durable goods जिसको हम long time तक रख सकते हैं, और perishable goods जो 1 day और 2 days ही हम उन्हें स्टोर कर सकते हैं, otherwise they will be destroyed. So durable goods can be transported in through any mean of transport, road, railways, oceans, because they have no effect of the time. But perishable goods, we have to transport these perishable goods within 1 or 2 days. So most of the perishable goods, if we have to transport these perishable goods at the international level, we will use the air transport. अगर हमें इसे एयर आउट ऑफ द कंट्री जो है इसे ट्रांसपोर्ट करना है, पेरिशेबल गुड्स आपकी कैसे होती हैं, जैसे कि आपकी वेजिटेबल्स हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो है वो हम ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते. तो इन सब चीज़ों को हमें इमीडिएटली जो है वो क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है. और लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर हमें इन्हें ट्रांसपोर्ट करना है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये जो है वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगी. अगर हमें अपने ही नियर बाय एरिया में इसको ट्रांसपोर्ट करना है तो मे बी हम रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं. ड्यूरेबल गुड्स जो है वो हम काफ़ी टाइम तक स्टोर रख सकते हैं, तो इस पर टाइम का इफेक्ट नहीं होता. तो इसलिए इसके लिए हमारे यहाँ पर जो चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इट डिपेंड्स अपॉन देयर क्वांटिटी. नाउ द सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के हमें कहाँ से कहाँ तक जो है ट्रांसपोर्ट करना है और किस तरीके के गुड्स जो है मटेरियल जो है हमें ट्रांसपोर्ट करना है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डिपेंड अपॉन द वेट ऑफ द गुड्स. तो वेट कितना है, क्वांटिटी, वेट और क्वांटिटी हम दोनों ही लेंगे. इसमें वेट और क्वांटिटी पर डिपेंड करता है और दूसरा डिस्टेंस पर डिपेंड करता है. किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगी कि वो उस गुड का वेट और क्वांटिटी कितनी है, या फिर उसका जहाँ तक उसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है उसका डिस्टेंस कितना है. अब सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट फैक्टर लेते हैं क्वांटिटी और वेट. इसमें हमारी हो सकती हैं बल्की गुड्स, हो सकती हैं बल्की एंड हैवियर, और दूसरी हमारी हो सकती हैं लाइटर गुड्स. अब बल्की गुड्स जो है हमें ट्रांसपोर्ट करनी है, जिनको हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं. अगर विद इन कंट्री हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो विद इन कंट्री अगर हमें बल्की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है देन वी विल यूज रेलवेज विद इन कंट्री. अगर हमें यही बल्की गुड्स को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करना है तब हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज इट विल बी वेरी कॉस्टली.
we will use the oceanic routes. So we will use the waterways at the international level. सिमिलरली अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस भी, अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर हमें किसी चीज को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, रोड्स या रेलवेज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें उन्हीं चीजों को लॉन्ग डिस्टेंसेस पर ट्रांसपोर्ट करना है तो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए किसका यूज करेंगे, बिकॉज गुड्स आर हैवी एंड बल्की, वी विल यूज द वाटर वेज। और अगर इसी में हमारी जो गुड्स हैं वो लाइटर हैं, लाइटर गुड्स हैं, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, लाइटर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द एयर ट्रांसपोर्ट और ओशनिक रूट्स, और थ्रू द ओशनिक रूट्स, और वी कैन से वाटरवेज। तो लाइटर गुड्स को हम एयर ट्रांसपोर्ट से भी जो है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके पर्ल्स हो गए, गोल्ड हो गया, ये सारी जो हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल थिंग्स हैं। इनको हम अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो हम किसका यूज़ करेंगे, एयर ट्रांसपोर्ट का। लेकिन अगर हमारा कुछ मटेरियल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है उसे हमें इंटरनेशनल लेवल पर ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी लाइटर मटेरियल, वी विल यूज द ओशनिक रूट्स। सिमिलरली विद इन कंट्री वी कैन यूज फॉर द लाइटर मटेरियल, वी विल यूज द रोड एंड रेलवेज। दोनों ही तरीके के हम जो है उसे यूज कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंसेस तक जाना है तो हम रोड और रेलवेज का यूज करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंसेस रोड्स का यूज करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस पर जाना है तो हमें रेलवेज का यूज करेंगे हम विद इन कंट्री। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल। अब जरूरी नहीं कि सारे मीन्स जो हैं वो हर जगह अवेलेबल हो, जैसे कि आपके हिली एरियाज में आपको ओशनिक रूट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर हिली एरियाज में अगर आपको कोई जो चीज़ है ट्रांसपोर्ट करनी है, कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो मैं वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। अगर वहाँ पर रोड्स हैं तो हम हैवी हो गुड्स, बल्कि हो या फिर लाइटर मटेरियल हो, हम उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू करेंगे, रोड्स के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेबल विच आर अवेलेबल इन दैट एरिया इज वेरी इम्पॉर्टेंट। तो सभी जगह हमारे ओशनिक रूट्स नहीं जा सकते, एयर रूट्स नहीं जाते, तो कहीं कुछ ऐसे प्लेसेस जहाँ पर पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल है वहीं पर हम उस पर ही डिपेंड करेगा कि हम इस तरीके की गुड्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इट मीन्स चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, जब हम किसी ट्रांसपोर्टेशन मीन का चूज करते हैं तो ये डिपेंड करता है हम किस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर हमारी कॉस्ट क्या पड़ेगी और किस तरीके का जो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए अवेलेबल है। सो दिस इज द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। Okay students, in the next lecture we will start our land transport. Have a nice day.